Okay, recording has started. Let's continue the lecture. We were saying कि भाई the time to go up should be the same as the time to come down. We know that the time to go up is 2.04 seconds. So what we just write is time to come back equals to time to go up. So that means total time क्या हो जाएगा? Simply 2.04 plus 2.04 and that should be 4.08 seconds. Correct? Let's call this one. इसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, बस ठीक है, ये टाइम हमारा टोटल टाइम टू गो अप एंड कम बैक है. ठीक है, सो दिस इज वेयर वी आर एट राइट नाउ. नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि हमारी बॉल नीचे जब वापस अब जा रही है, सो ऑब्वियसली दिस इज गोना फर्दर एक्सेलरेट. The ball is going to speed up further, and when it's going to hit the ground, then what will be the velocity of the ball when it hits the ground? The ball has to travel a further 50 meters. अच्छा, डायग्राम थोड़ा सा मिसलीडिंग मैंने बना दिया है क्योंकि 20 और 50 तकरीबन बराबर ये लग रहा है, but don't worry about that. The diagram is not to scale. So now what should be V3 when the ball hits the ground? What would it be its velocity? It's a very straightforward question again. So I'm just writing it down, but मैंने verbally आपको बता दिया आपने क्या find out करना है. आपने मुझे V3 की वैल्यू देनी है. What would be the velocity of the ball as it hits the ground? Try to find it while I'm writing down the question. ढूंढो ढूंढो, शाबाश. V3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? So now what pieces of information do we have? It depends on कि आप कौन सा part of motion जो है वो consider करना चाहते हो. आप अगर पूरा motion consider करना चाहते हो यहाँ से यहाँ तक का, it's up to you. You can take that entire time. Okay. If you just want to take this part of the motion from here to here, that is also up to you. If you want to take this part of the motion only, that is also up to you. You can literally do anything. आपके पास unlimited options हैं. You have all the options and you can use any of them basically to find out the value of V3. क्या आपने motion का इतना वाला part consider करना है, the entire motion? Do you want to just consider this part of the motion, or do you just want to consider this part of the motion? Let's just take this part of the motion, the last part. Okay, V2 से V3 तक का हम देखते हैं, consider करते हैं. So now initial velocity अगर मैं V2 से V3 तक का करता हूँ, so what I'm going to say is from the roof to the ground, right? That is what I am trying to basically understand. So initial velocity कितनी हो गई? Initial velocity जो है जिसको हम U बोलते हैं वो मेरी basically V2 के बराबर है, and that was how much? 20 meters per second. Final velocity क्या होगी? That is what I have to find. That is what I am calling V3, right? जिसे हम V कहते हैं उसको हम V3 बोल लेते हैं. I don't know what is the final velocity. Time क्या होगा? I don't know. So if I don't know the time, then I should avoid the equation जो time को use करेगी. Height कितनी है? Displacement कितनी होगी? How much does the ball have to travel? Displacement. 50. That is the height of the building. Exactly. Height of building, which is 50 meters. So one more thing is we need to know the acceleration. And what should be the acceleration of the ball? Either हम इसको -9.81 ले लें या हम +9.81 ले लें, but that depends कि हम velocity की value को positively treat कर रहे हैं या negatively treat कर रहे हैं. अगर हम इसको negatively treat करें तो ज़्यादा बेहतर है, because overall फिर आपको बात ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी. इसको -9.81 meters per second लेते हैं. -9.81 meters per second square. Now that means कि मुझे velocity v2 को भी -20 meters per second बोलना चाहिए. ठीक है, इसी तरह मुझे अपनी displacement को भी -50 बोलना चाहिए.
I'll tell you why. Because अभी हम ग्राफ प्लॉट करने लगे, उसके अंदर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे मैं v2 के साथ माइनस साइन लगा रहा हूँ. ठीक है. Now what equation can I use? V square minus u square is equals to 2as. I have to find v square. v square मुझे फाइंड आउट करना है. u की वैल्यू मैं क्या ले रहा हूँ? माइनस 20 meters per second squared. That is the initial velocity at the roof. 2. Acceleration की वैल्यू माइनस 9.81. डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू माइनस 50. ये सारे माइनसेस इवेंचुअली कैंसिल आउट हो जाएंगे. एंड में मेरा आंसर जो है वो माइनस में ही आएगा, क्योंकि डाउनवर्ड्स वेलोसिटी को मैं नेगेटिव ही कंसिडर कर रहा हूँ. तो ये चीज जो वेलोसिटी इसको हम v3 बोल रहे हैं. लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट कि हमारा v क्या आ रहा है. तो निकालो, कैलकुलेट करो. 2 इंटू, निकालो अपना कैलकुलेटर. 2 इंटू माइनस 9.81 इंटू माइनस 50, और फिर आपने उस तरफ जाके प्लस करना है 20 का स्क्वायर, राइट. एंड देन यू हैव टू टेक द अंडर रूट, एंड व्हाट यू गेट इन द एंड इज 37, राइट. आपके पास क्या वैल्यू आ रही है? 37 वैल्यू आ रही है. 37.2 meters per second. Is everyone getting the same value as me? या कोई और मसला आ रहा है? Yes. यही वैल्यू आ रही है. सो बेसिकली हमारे पास 37 meters per second की वैल्यू आ रही है. ऑल्दो मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है अपने आंसर पे, सो लेट मी जस्ट कंफर्म वंस अगेन. थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है. देयर इज अ स्लाइट प्रॉब्लम विद दिस. अच्छा, एक काम करते हैं. फॉर अ मोमेंट लेट्स जस्ट इग्नोर माइनस साइंस. इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ेगी, सो आई एम जस्ट गोना इग्नोर माइनस साइंस फॉर नाउ. ओके, लेट्स जस्ट इग्नोर माइनस साइंस. सो v square minus u square is equals to 2as. सब पॉजिटिव रखते हैं, ठीक है, because everything is in the same direction, so we don't need minus signs right now. मैं अभी over efficiency दिखा रहा था, we don't need. So हम यहाँ पे क्या करते हैं? 20, और यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो 2 into 9.81 into 50, एंड देन उस साइड पर जाके 20 का स्क्वायर होना चाहिए, राइट. एंड देन व्हेन आई टेक द अंडर रूट, मेरे पास आंसर क्या आता है? वही आंसर आ रहा है 37. Although I'm still not sure if this is the right answer. मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है इस आंसर पे. क्यों डाउट हो रहा है इसकी वजह मैं आपको बाद में बताऊंगा. बट लेट्स जस्ट टेक दिस फॉर एन आंसर. लेट्स जस्ट टेक दिस फॉर एन आंसर. ठीक है. अब हमारे पास फाइनल वेलोसिटी फर्दर इंक्रीज होकर 37.2 पे चली गई है, राइट. 37.2 पे हमारी वेलोसिटी फर्दर चली गई है. अब हम ये देखना चाह रहे हैं. Okay, so now what we need to do is plot the graph of velocity versus time. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे आपने समझनी है आज वो क्या है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसे प्लॉट होगा. सो यहाँ पे मैंने वेलोसिटी वर्सेस टाइम के एक्सेस बना दिए, ठीक है. फॉर सम few things that we need to decide beforehand. Take positive as upwards. ठीक है, अपवर्ड्स को हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे और नेगेटिव को एज डाउनवर्ड्स कंसिडर करेंगे हम. सो डाउनवर्ड्स वेलोसिटीज आर आवर नेगेटिव वेलोसिटीज, अपवर्ड्स वेलोसिटीज आर आवर पॉजिटिव वेलोसिटीज. ठीक है, इस बात को जहन में रखना. अच्छा, अब यहां से कंटिन्यू करते हैं बात को. तो मेरे पास सबसे पहली मेरे पास वेलोसिटी इनिशियली क्या थी? बॉल को हमने किस वेलोसिटी से अपवर्ड्स थ्रो किया था? What was the initial velocity of the ball? टाइम 0 पे बॉल की वेलोसिटी क्या थी जब हमने उसको ऊपर थ्रो किया था? Do you remember? लिखी हुई यहाँ पे नजर आ रही है. क्या वेलोसिटी थी बॉल की इनिशियली? 20 meters per second. So 20 meters per second is the initial velocity. इसको हम यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं. Let's just take this point as 20 meters per second. ठीक है, 20 meters per second की मेरी इनिशियल वेलोसिटी है, और कितने टाइम पे मेरी बॉल जो है वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गई थी? लेट्स से अराउंड 2.04 सेकेंड्स पे हमारी बॉल जो है वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गई थी. इज दैट राइट? सो हमारी एक्सेलरेशन कैसी है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और यू कुड से इट्स डीसेलरेशन. सो दिस विल बी द ग्राफ फॉर व्हेन द बॉल वाज गोइंग अप. बॉल ऊपर जा रही है, उसकी वेलोसिटी कम हो रही है. At this point, the ball is at its highest point.
Okay, at this point the ball is at its maximum height, right? उसकी velocity यहाँ पे 0 थी. इसके बाद बॉल को क्या हुआ था, नीचे आते हुए बॉल की velocity increase कर रही थी, but in which direction was the ball traveling when it was coming down? Ball downwards direction में travel कर रही है. Velocity तो increase कर रही है. In the magnitude, the velocity is increasing. The speed of the ball is going from 0 to 20 again. But what's important is that the ball is going downwards. So हमें इस velocity को negative consider करना है. So now the velocity will increase in the negative direction. But even more important than that is that the amount of acceleration is still minus 9.81. So the gradient of the graph is not going to change. So this graph basically just continues like this. और अब यहाँ पे मेरी velocity की value क्या हो जाएगी? Around -20. मेरी velocity की value क्या हो गई? -20 हो गई. और इस वक्त time क्या हो रहा था? This is when the ball was, yes. Sir, velocity negative क्यों हुई? Because velocity is a scalar or a vector. पहले तो मुझे ये बताओ. Vector. Vectors quantities की direction important होती है, right? So when vectors are in opposite direction, तो हम उनको फिर negative consider करते हैं. It is very important one dimensional motion में जब कोई चीज opposite direction में हो तो उसको minus sign के साथ show किया जाए. That is why we are taking it as a negative sign. ठीक है, ये बात सबको clear हो गई? Now we need to continue with the velocity. अब हमारी velocity further increase कर रही है, but still in the negative direction, still in the opposite direction. So हमारी ball और नीचे जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, and the graph will basically continue like this unless the ball hits the ground. हमारी ball जब ground को जाके hit कर जाएगी, तो फिर हमारे पास ये graph बस यहाँ पे खत्म हो जाएगा. So this is the velocity time of the graph where the ball was first going up. यहाँ पे ball is going up. यहाँ पे ball is going down. What is this point? ये वाला point क्या है? Why is this point so important? 4.80 seconds वाला. What is so special about this point? It is at starting point. अपने starting point के सामने से गुजर रही है. अपने starting point roof के सामने से गुजर रही है ball दोबारा, ठीक है? And then this entire part of the graph which is at the bottom shows that the ball is falling down. But what is important? The line is straight because acceleration was uniform. And why is the gradient of the line negative? Line का gradient negative क्यों है? Because acceleration was also downwards, so that is also taken as negative. Acceleration भी downwards थी, so acceleration को भी negative consider किया. और इस graph का अगर मैं gradient निकालूं बैठ के, if I find out the gradient of the graph like this, अगर मैं ऐसे graph का gradient निकालूं, तो इसकी value क्या आनी चाहिए? Gradient should be equal to minus 9.81, which is equal to the acceleration of the ball. Okay? तो ये सारी चीजें clear होनी चाहिए. अब इसी situation का आप displacement time graph भी बना सकते हो. Same इन्हीं times पे हम एक graph बनाते हैं जिसको align करेंगे ऊपर वाले graph के साथ. So this is time and this is displacement, and we will measure the displacement of the ball from starting point. मतलब कि रूफ से हम मेजर करेंगे बॉल की डिस्प्लेसमेंट. सो इनिशियली तो बॉल रूफ पे ही है. सो व्हाट इज द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल? द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज ऑब्वियसली 0. टाइम 0 पे बॉल इज एट द रूफ, सो द वेलोसिटी इज आल्सो 0. अब ये वाला टाइम है टाइम 2.04 सेकंड्स का, और ये वाला टाइम है टाइम 4.08 सेकंड्स का. नाउ रिमेंबर, इनिशियली द बॉल वाज गोइंग अप. ऊपर जाते हुए बॉल का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की शेप कैसी होगी? लेट्स गो बैक टू द केस जहां पे हमने सिर्फ ऊपर जाती हुई बॉल का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पहले ड्रॉ भी किया था. ये देखो, दिस वाज द बॉल व्हिच वाज थ्रोन अप, और हमने इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यहाँ पे बनाया था. ये नजर आ रहा है आपको? डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ले लो या हाइट का ग्राफ ले लो, व्हाटएवर. सो दिस इज द पार्ट ऑफ द ग्राफ व्हिच विल बी फ्रॉम 0 सेकंड्स टू 2.08 सेकंड्स. जब तक बॉल ऊपर जा रही है तो ग्राफ, इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा ग्राफ बनेगा. राइट?
एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट हियर, हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ले सकते हैं, कितनी होनी चाहिए, 20.4 मीटर्स होनी चाहिए, बिकॉज बॉल इतनी ऊपर गई थी, दैट्स हाई द बॉल वेंट फ्रॉम द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट को क्या होगा, बॉल अब नीचे आ रही है वापस की तरफ, बॉल वापस नीचे आ रही है, इनफैक्ट द बॉल इज रिटर्निंग बैक टू इट्स स्टार्टिंग पोजीशन बट सेम उसी एक्सेलरेशन के साथ। सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग टू द ग्राफ। एक पूरा कर्व बनेगा, आई कैन जस्ट ड्रॉ द कर्व इन वन गो। सिमेट्रिकल होना चाहिए कर्व, मैं थोड़ा सा एसिमेट्रिकल बना रहा हूँ, यहाँ पे गलती हो रही है मुझसे। This is what the graph is going to look like. यहाँ पे बॉल अपने मैक्स हाइट पे है, right? This is the ball is going up. This is the ball going down. यहाँ पे बॉल आपकी डाउन जा रही है. At this point, the ball returns to its starting position. क्योंकि इसकी डिस्प्लेसमेंट वापस जीरो हो गई है. डिस्प्लेसमेंट जीरो होने का क्या मतलब है? You have returned to your starting point. But how does the graph continue? ग्राफ ऐसे कंटिन्यू हो रहा है कि इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ग्राफ नीचे जाएगा but it will still be a curve and it will keep getting steeper and steeper. Look, I'm not making a straight line, I'm making a curve and I'm making it steeper and steeper. इसको और ज्यादा मैं steep कर रहा हूँ कर्व को जाते हुए, almost vertically हो गई मेरी लाइन. So the ball still falling down, going down, ठीक है, going down by the side of the building, by the side of the building. बिल्डिंग के बराबर में जब बॉल नीचे गिर रही तो ये उसकी सिचुएशन है. So this is what the displacement time graph looks like. Now what would be the acceleration time graph of the ball? Acceleration की वैल्यू थ्रू आउट एक ही थी. Can someone tell me कि acceleration की वैल्यू क्या थी थ्रू आउट? एक ही वैल्यू थी, which was -9.81. minus 9.81. So minus 9.81 अगर मैं यहाँ बना लूँ, so इसकी वैल्यू थ्रू आउट यही रहेगी. So ये मेरा acceleration time graph बन गया मेरी बॉल का, right? Now look at the whole situation from start to the beginning. और ये वाला लेक्चर आपको ठीक ठाक रिवाइज करना पड़ेगा, इसकी रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी गौर से. This is a case where a lot of students struggle. और इस तरह के पूरे क्वेश्चन आए हैं पास पेपर्स में, पेपर 2 में, हाँ, जहाँ पे ये ग्राफ प्लॉट भी करना है या कहीं पे बना हुआ है ग्राफ, and you can actually find a lot of important information from this graph. जैसे ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो. फॉर एग्जांपल ये वाला जो एरिया अंडर द ग्राफ है, ये इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? इसकी वैल्यू 20.4 होनी चाहिए, बिकॉज this is giving you the displacement of the ball and this is the displacement of the ball while it was going up. So ball कितनी ऊपर गई थी? बॉल कितनी ऊपर गई थी? 20.4 मीटर्स ऊपर गई थी. अच्छा, उसके बाद अगर मैं ये वाला एरिया निकालूं सिर्फ इतने ट्राइंगल का, तो इसका एरिया भी 20.4 आना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे बॉल वापस नीचे आई थी. उसके बाद अगर मैं सिर्फ ये वाला एरिया निकालूं बॉल का, जब बॉल ने ग्राउंड को हिट कर दिया था, तो ये वाला एरिया 50 मीटर्स आना चाहिए, बिकॉज बिल्डिंग को क्रॉस करने के बाद हाउ फार डिड द बॉल हैव टू गो? इट हैड टू गो अनदर 50 मीटर्स बिफोर हिटिंग द ग्राउंड. ठीक है, क्लियर है बात? सो ये सारी चीजें हम इन ग्राफ से निकाल भी सकते हो. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और इसको आपने रिवाइज करना है दोबारा. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर लेसन. बल्कि काम करते हैं, आज का लेसन यहीं पे रोकते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि काफी चीजें हमने यहाँ पे कर ली. एक ही चीज की है बट इट्स क्वाइट डेंस, लेक्चर थोड़ा सा मुश्किल है. सो आई वुड से कि इसको तुम लोग रिवाइज करो, रिव्यू करो. ठीक है, अब मुझे ये बता दो कि टेस्ट किस किस के चल रहे हैं यार स्कूल में. और सर अभी मंडे को है हमारा और कल केमिस्ट्री. मंडे को क्या आएगा टेस्ट में? सर टेस्ट में क्या आना है? काइनेमेटिक्स और फर्स्ट चैप्टर एज वेल. सर जी सर, काइनेमेटिक्स तक था. पहला वाला चैप्टर हमने डन कर दिया था. सेकंड चैप्टर अभी हम काइनेमेटिक्स कर रहे हैं. काइनेमेटिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये लेसन 5 रह गया, प्रोजेक्टाइल मोशन.
सही है. So if you have a class tomorrow, तो कल हम ये करेंगे. अगर कल ना हुई क्लास हमारी एक्स्ट्रा क्लास, तो फिर हम इसको सैटरडे वाली क्लास में कंप्लीट करेंगे. I'll give you an example. But then I will leave you with lots of past paper questions that you can practice and ask the answers from me and understand them from me before your test, ताकि आप लोगों का टेस्ट जो है उसमें थोड़ी आप लोगों की इज्जत रह जाए. ठीक है ना? सर So I'll give फ्राइडे you past paper questions. जी बेटा. सर फ्राइडे हो सकती क्लास, फ्राइडे या फिर कल? यार फ्राइडे, अच्छा सैटरडे का, फ्राइडे को मैं रख लेता हूँ. बल्कि आप लोगों से मैंने डिस्कस ये भी करना था, इस सैटरडे को मेरी स्कूल में वर्कशॉप है. I have just switched to a new school and this school likes to call teachers on Saturdays for some reason. Like हमेशा नहीं बुलाते, लेकिन इस बार वर्कशॉप है and it will start at 10 in the morning but it will end in the evening. तो मैं हमारी क्लास जो जिस टाइम पे होती 2 बजे आई गेस, या पता नहीं क्या टाइम है, उस तक मैं वापस नहीं आ सकूंगा. सो लेट्स कीप द क्लास. हमने कल वैसे डिसाइड किया था थर्सडे को रखेंगे. तो कल कितने लोग पहले क्लास ले सकते हैं? प्लीज रेज योर हैंड. कल कितने लोग क्लास ले सकते हैं? सर टाइमिंग्स क्या है? सेम यही वाला टाइम रखना चाहता मैं कल की क्लास का. एग्जैक्ट यही जैसे आज हुआ था, फ्रॉम 6 to like 7:30 और 5:45 to 7:15. ठीक है सर. That is obviously a one off. ये एक एक्स्ट्रा क्लास है. It's not like a regular thing. वैसे तो हमारी सैटरडेज को ही हुआ करेगी, बट कल मैं लेना चाह रहा हूँ क्लास इस टाइम पे. So Basima, will you be able to take that class?